Hello students, this is Kamaljit Bhatti, PGT Biology from JNV Karnal, and I am taking your online classes, and this video lecture is specially for class 10th. Today I am taking chapter number 6 of your science book, and that chapter is life processes, right? So today we will discuss about the life processes and उसमें से एक किसी हम प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस आर द processes which are means the activities which are performed by organism to maintain their life on the earth, right? Suppose this is an organism. So this organism has to take nutrition, first of all they have to take nutrition. Second process is extraction of energy. Extraction of energy from the nutrient. Third process, transport that nutrient to each and every cell, right? During the process of extraction of energy, means first step is to get the nutrients from the nutrition from the surrounding. Second step, transport that nutrient material to the different parts of the body, means these are the different cells of the organism. So this is the duty of some tissue and some organ of the body to transport that nutrient material to each and every cell of the organism. So this is called transportation, right? Third step is when food enter inside the cell, next step is to extract the energy from the nutrient, right? And during this process of extraction of energy, some waste material produces, right? So next process is to removal of waste material, right? So this is called nutrition, first of all. Second is transportation. First process क्या हो गया? Nutrition. Second process is transportation of that nutrient material to each and every part of each and every cell of the body. Third process is to extract the energy from the nutrients. Means जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उसमें जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो दिस इज द थर्ड प्रोसेस. एंड फोर्थ प्रोसेस, जो उस दौरान रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ताकि हम उसमें से एनर्जी निकाल सकें, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सम वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड. सो रिमूवल ऑफ दोज वेस्ट मटेरियल from the body is called excretion. That process is called excretion. So these are the four main processes, life processes, which are necessary for each and every organism on this earth. Means कोई भी organism धरती के ऊपर है वो ये चार प्रोसेस करता ही है. इसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है. उसको जिंदा रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन चाहिए, राइट? दिस इज द प्रोसेस. अब आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन क्या है, थोड़ा सा इसको आप यही डिस्कस कर लो. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग.
This is organism. This requires some material to carry on its reaction. It requires some energy to complete its some biological activities. So the process of getting food from the surrounding is called nutrition. So this is the first step. Second step, transport that material to each and every cell of the body. हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं दे रिक्वायर एनर्जी. सो हम फूड तो माउथ से ले रहे हैं, बट वो फूड जो है जो हमने खाया है वो हमारे हर सेल को, पूरी बॉडी के सेल को, चाहे वो ब्रेन सेल हैं, चाहे वो किडनी सेल हैं, चाहे वो लिवर के सेल हैं, कहीं भी जो सेल हैं वहां तक फूड मटेरियल पहुंचना चाहिए. दैट सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड प्रोसेस क्या होगा, जब फूड जो है, मान लीजिए जो ये सेल है, इसको मैं एक सेल यहां पे बना रहा हूं, जैसे मान लो ये एक सेल है, जब फूड मटेरियल इसके अंदर एंटर करेगा, जब फूड मटेरियल इस सेल के अंदर एंटर करेगा तो उस फूड मटेरियल में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को, एनर्जी को निकालने के प्रोसेस को, क्योंकि एनर्जी हिडन है उसके अंदर, उसको निकालना है ताकि हम सेल की जो एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए वो ले सके उसमें से. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ओके, जो वो सारा प्रोसेस हुआ उसके दौरान कुछ एक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है. स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सम पिगमेंट्स, सम साल्ट्स, they are the waste material of the body. Means when they are the byproduct, they are the end product of the metabolic processes which occurs inside the cell. Means cell के अंदर कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं इस सारे एक्टिविटी के दौरान जो हमारे सेल को नहीं चाहिए. दे आर हार्मफुल फॉर द सेल, दे आर वेरी dangerous for their accumulation is very dangerous for the cells, right? So it is necessary to remove those waste material outside the body. So that process is called excretion. Sum total हम ये कह सकते हैं there are 4 main processes. First process is nutrition. जो सभी ऑर्गेनिज्म जो धरती के ऊपर हैं उनको चाहिए. न्यूट्रिशन क्या है? It is the process. It is the process to get food from the surrounding. From the surrounding. अपने आसपास है. जैसे हम खाना कहां से ले रहे हैं? हम खाना जो है अपने चाहे प्लांट से ले रहे हैं, चाहे किसी दूसरे एनिमल से ले रहे हैं, तो हम खाना कैसे अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है? वो प्रोसेस क्या है, वो वे क्या है, तरीका क्या है? दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर various activities of the body is called nutrition. क्लियर? तो न्यूट्रिशन क्या है? बाहर से खाना लेने का तरीका और उस खाने को हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यूज कर सकें, वो हम देखेंगे क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है? बट अभी मैं आपको एक सम टोटल आपको करवा रहा हूं कि हम लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं. तो पहला कौन सा हो गया? न्यूट्रिशन. सेकेंड प्रोसेस कौन सा हो गया? जिसको हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं रेस्पिरेशन. फूड तो हमने खा लिया. अब उस फूड के अंदर जैसे हमने मान लीजिए ये ग्लूकोज है, हम खाने में क्या ले रहे हैं? ग्लूकोज, या फिर प्रोटीन, या स्टूडेंट हम जो है फैट, घी, तेल ये खाते हैं, चाहे हम चपाती खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, तो उसमें क्या चीज होती है? या तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, स्पेशली ग्लूकोज हम कह सकते हैं उसको, ठीक है? हालांकि और बहुत अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन सिंपल एग्जांपल आप मान लो ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स, ये क्या है? फूड. क्यों है ये फूड? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी है. कैसी एनर्जी है? हम उसको निकाल सकते हैं. तो फूड क्या होता है? फूड इज अ मटीरियल विच कैरीज सम एनर्जी, राइट? एंड आवर बॉडी कैन एक्सट्रैक्ट दैट हिडन एनर्जी फ्रॉम दैट मटीरियल, राइट? सो दीज आर द फूड मटीरियल. अब इस फूड में से
हमारे जो सेल हैं दे कैन एक्सट्रैक्ट द एनर्जी, दे कैन एक्सट्रैक्ट द एनर्जी, राइट। जैसे मैं आपको यहां पर ये सेल बता रहा हूं, जैसे ये सेल है और आपने ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा दिया। आपने सुबह चपाती खाई या चावल खाया, उसमें ग्लूकोज था और वो ग्लूकोज जो है कहां तक पहुंच गया, सेल के अंदर। दिस इज सेल। अब क्या होगा, ये टूटेगा, यहां पर ब्रेक डाउन होगा ये, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में कि कैसे ब्रेक डाउन होगा। लेकिन ये ब्रेक डाउन होने के दौरान इसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। दिस विल प्रोड्यूस एनर्जी, और सेल उस एनर्जी को एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में संभाल के रख लेता है, कंजर्व कर लेता है अपने पास, कि वो फ्यूचर में कभी भी कोई काम करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा, तो सेल कैन यूज दैट एनर्जी। मीन्स डायरेक्टली फूड से एनर्जी लेकर उसको खर्च नहीं किया जा सकता, राइट। सेल पहले उस फूड की एनर्जी को किसी स्टोर फॉर्म में मीन्स कन्वर्ट करता है, और वो फॉर्म क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एटीपी। स्टूडेंट आप मुझे इसको लिख के बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म जो है भेजेंगे मुझे लिख के, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल ग्लूकोज हो सकता है, फूड मटेरियल जो है आपका प्रोटीन या उसके जो अमीनो एसिड्स हम कह सकते हैं वो हो सकते हैं, या फिर फैट जो हम खाते हैं, फैट या लिपिड जो हम फूड मटेरियल खा रहे हैं, किसी भी फूड मटेरियल से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, राइट। सो दिस इज द सेकंड प्रोसेस। सिंपल भाषा में याद करना, खाना हमने खाया, अब उसमें से एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हमने क्या बोला, खाना खाने का तरीका, न्यूट्रिशन। कैसे लिया हमने खाना, कहां से, अपने सराउंडिंग से, किस तरह से हम खाना ले रहे हैं। जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स। जैसे हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, राइट। किसी दूसरे के ऊपर हम सर्वाइव कर रहे हैं तो वी आर हेट्रोट्रॉफ। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ्स हैं, लेकिन फूड लेने के बाद चाहे हम ऑटोट्रॉफिक हैं चाहे हम हेट्रोट्रॉफिक हैं, बट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम दैट फूड मटेरियल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी अलग अलग टाइप का है, ये अभी से अपने दिमाग में रख लो। सम ऑर्गेनिज्म कैन एक्सट्रैक्ट द एनर्जी विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम लोग सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी निकालने के लिए, ओके इसको यहां देखेंगे जरा, हमें जो फूड हमने खाया उसमें से एनर्जी निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म है फिर, वी रिक्वायर ऑक्सीजन टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द फूड, सो वी आर एरोबिक, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। और जिनको ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए, वो फूड में से एनर्जी निकाल सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन समझ गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड means use of oxygen. There are two type of organism which use oxygen, they are called aerobic organism, which do not use, they are called anaerobic organism. बहुत सारे anaerobic organism भी हैं, like some bacteria, right, they are anaerobic, they can extract the energy without the use of oxygen. मान वो अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगी तो जिंदा है वो, ठीक है। ओके, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। जैसे मसल सेल्स, they can extract the energy without the use of oxygen, right, so they can perform anaerobic respiration. Okay, third process जो हम करने वाले हैं, that is transportation. Okay, इसको मैं सिंपल एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये माउथ है हमारा, हमने खाना खाया, वो ऑइसोफेगस से कहां पहुंचा, स्टमक के अंदर पहुंचा, स्टमक से कहां चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, राइट, डाइजेस्ट हो चुका है। अब जरूरत है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने यहां चपाती खाई थी ना, बड़ा सा एक पीस चपाती का खाया था, वो ब्रेकडाउन होता हुआ, कुछ ब्रेकडाउन माउथ में हुआ, उसको हम पढ़ेंगे ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है, राइट। डाइजेशन क्या है, लेकिन आगे चल के मीन्स यहां पहुंचते पहुंचते वो कॉम्प्लेक्स फूड जो था, जो चपाती आपने खाई थी, वो यहां पहुंचकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है,
ग्लूकोज। जो आपने प्रोटीन खाई थी वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? अमीनो एसिड्स, राइट। मींस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करना। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी इसको नहीं टच कर रहा हूं। लेकिन अब जरूरत है कि जो ये फूड आप इन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा है, उसको जो बॉडी के सारे सेल्स हैं वहां तक हमें ट्रांसपोर्ट करना है। क्यों हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसीलिए खाते हैं बिकॉज दिस इज द नेसेसिटी ऑफ आवर सेल्स। हमारे सेल को चाहिए, राइट। ओके, तो यहां पर स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है। यहां से ब्लड जो है वो फूड को कैरी करता है। ब्लड यहां से फूड को कैरी करेगा और वो कैरी करके सब सेल्स को उसकी डिलीवरी देता है, मींस उसको पहुंचाता है, राइट। ब्लड कैरी द फूड मटेरियल फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? ये सारी की सारी कैनाल है जिसमें फूड डाइजेस्ट हो रहा है। तो यहां से फूड को कैरी करके सभी सेल जो बॉडी के हैं वहां तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, राइट, वो कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ब्लड इज अ कह सकते हैं एक मीडियम है जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, राइट। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब फूड जो है वो मेटाबोलाइज होगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा, राइट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया हो सकता है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, और भी बहुत अलग अलग तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, राइट। ब्लड उनको अपने साथ ले आता है वापिस। मींस यहां पर देखिए, ब्लड ने फूड यहां पर दिया, वेस्ट प्रोडक्ट वापस ले लिया। दूसरा, मैंने आपको बताया कि फूड में से एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन भी दे दिया। सेल को दिया क्या? फूड, ऑक्सीजन। और वापस लिया क्या? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी ले लिया। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी वापस ले लिया, और उसको फिर पूरी बॉडी से उठाकर, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सो थर्ड प्रोसेस जो है हमारा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज द थर्ड प्रोसेस। अब ट्रांसपोर्टेशन अपनी बुक में जब आप देखेंगे, अगर तो ऑर्गेनिज्म जो है, इधर ध्यान देंगे जरा, अगर तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा का डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसका डायग्राम कोई पक्का नहीं होता कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है। इट इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। ऐसा भी हो सकता है, जिसकी सबसे खराब ड्राइंग होगी उसका अमीबा का डायग्राम बहुत बढ़िया बनेगा, राइट, बिकॉज इट हैज नो डेफिनेट शेप। कैसी भी शेप हो सकती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं स्टूडेंट प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मींस ऐसी आप कैसी भी शेप बना दो ठीक होगी, ठीक है, क्योंकि अपनी शेप चेंज करती रहती है। दे हैव नो सेल वॉल, दे हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पर वीडियो लेक्चर में सुना होगा, ओके। तो यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि ये जो सेल है ये सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म है। दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको बाहर से फूड लेना है तो कहां से लेगा? ये जैसे वाटर में है तो वाटर से फूड अपनी मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये फूड मटेरियल है तो ये सिर्फ कहां से लेगा? यहीं से। ऑक्सीजन कहां से लेगा? वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको ही डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर सुने, सिंपली डिफ्यूज होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर आउटसाइड और इट इज कंज्यूमिंग इन द सेल, so it will diffuse from higher concentration to lower concentration, right? अगर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है तो खाली वो क्या होगा? मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। और भी कुछ प्रोसेस सब्सटेंसेस को चाहिए तो सिर्फ कहां से? मेम्ब्रेन से ही वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज सिंगल सेल। अगर ये सिंगल सेल है, there is no requirement of a special transport system, right? But organism like human being, अगर हम human being की बात करें तो हम बहुत बड़ा कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर है। there are so many cells। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है स्टूडेंट, तो आप इसको थोड़ा सा
ठीक है, ये बहुत सारे सेल हमारी बॉडी में है, यहाँ अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में 4 × 10⁻13 सेल्स हैं स्टूडेंट, कितने सारे सेल्स हैं, ठीक है, और पूरी बॉडी सेल से मिलके ही बनी होती है, ठीक है। तो यहां तो ये एक सेल था डायरेक्ट सराउंडिंग के कम्युनिकेशन में था, कांटेक्ट में था, जो फूड लिया यहीं से ले लिया, ऑक्सीजन यहीं से ले लिया, जो देना है वो यहीं दे दिया वापस। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, बट द सेल विच इज प्रेजेंट वेरी डीप इन द बॉडी, दिस इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, आउटसाइड के साथ किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट में नहीं है, राइट। सो देयर इज स्पेशल नीड टू ट्रांसपोर्ट द फूड, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, to transport the waste material from out of this cell and some other material. So in the multicellular organism, because all cells are not in contact with the surrounding, so there is special need of the transportation system, right? वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि कैसे ये transportation system वर्क करता है, काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें, ये ह्यूमन बीइंग की बात थी या दूसरे एनिमल की बात है, तो उसमें ब्लड ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, राइट। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो स्टूडेंट उसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। These two type of tissue perform the function of transportation of water and food from one part to other part of the plant, right? Okay, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो तीसरा फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ फूड, गैसेस या फिर वेस्ट मटेरियल का ही नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट जो एक जगह बनते हैं और काम बॉडी के दूसरे हिस्से में करते हैं, लाइक हॉर्मोन्स, लाइक राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन में और भी बहुत कुछ होगा, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। ओके, लास्ट प्रोसेस जो आएगा इसमें, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में अगर हम बात करें, फिर वही बात आ गई कि सिंगल सेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो क्लियर है कि उसमें से उसकी सेल मेम्ब्रेन से ही सब बाहर निकल जाएगा। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहां होगा? इन द ब्लड। मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है ये, ठीक है, और इसमें ये क्या है? वेस्ट मटेरियल। अब हमारे बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होता है इस काम के लिए, ठीक है। ये जो फूड है वो इस ऑर्गन के अंदर जाएगा। आप इसकी स्ट्रक्चर से ही समझ गए होंगे कौन सा ऑर्गन है। दिस इज कॉल्ड किडनी, दिस इज बीन शेप, राइट, और दिस इज द सेकेंड किडनी। इसमें भी ब्लड वेसल, कोई दूसरा ब्लड वेसल इसमें ब्लड लेके आएगा, राइट। और यहां पर कुछ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा स्टूडेंट। यहां पर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहीं रह जाएगा और क्लियर ब्लड जो है वो वापस बाहर चला जाएगा। क्लियर जो ब्लड है वो वापस बाहर चला जाएगा। देखो, ये ब्लड अंदर आ रहा है और ये ब्लड बाहर जा रहा है। मैं इस वक्त आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये जो किडनी है वो क्या कर रहे हैं? ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर रहे हैं और अपने पास रख लिया। अपने पास भी रखने के बाद वो क्या करेंगे? उसको इस ट्यूब से बाहर निकालेंगे और एक थैली, एक ब्लैडर के अंदर जमा करेंगे, राइट। इस तरह का ब्लैडर, राइट, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन, जो यूरिन बॉडी से निकल रहा है, एक्चुअली इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्टेड बाय द किडनी फ्रॉम द ब्लड, राइट। सो इसके अंदर जमा होता रहेगा और ये जो ट्यूब है आगे, यूरिथ्रा, इसके साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो जो यूरिन है उसमें मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज यूरिया, राइट, दैट इज अमोनिया। अमोनिया ही यूरिया में कन्वर्ट होता है बाद में, ठीक है। तो मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, दैट इज अमोनिया। बट अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, राइट, ओके। और जो दूसरा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड उसको कहां छोड़ के जा रहा है? लंग्स में। हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं, तो ये ब्लड उसको देगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल जाएगी, राइट।
सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो मैंने बता दिया किडनी है। तो किडनी से तो क्या निकल रहा है, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, बहुत सारी पिगमेंट्स भी हैं, और कुछ एक जो है वो यूरिया जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेकेंड बेस्ड प्रोडक्ट है दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स। तो लंग्स का मेन काम तो क्या है, ब्रीथिंग है, बट सेकेंडरी काम उसका एक्सक्रीशन भी है। ठीक है स्टूडेंट, आपने कई बार देखा होगा कि हमारी कई बार हम मान लीजिए बहुत लंबे टाइम से कोई दवाई खा रहे हों, ठीक है, कोई आप बीमार पड़े तो लंबे टाइम से आपने दवाई खाई, उससे बाद क्या होता है 3-4 दिनों के बाद हमारे कपड़ों से भी ड्रग्स जो दवाई की स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब पसीने से, स्वेट से भी हमारी कुछ जो एक्सक्रीशन होता है, राइट। तो जो स्वेट है मेन फंक्शन तो उसका कुछ और हो सकता है, बट सेकेंडरी फंक्शन उसका एक्सक्रीशन भी है। टंग, बहुत सारे पिगमेंट्स और कुछ एक और सब्सटेंसेस जो है हमारी जीभा से, टंग से भी एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, बट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज्म किडनी। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि देयर आर 4 लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज respiration, third is transportation, and fourth is excretion. So these are the 4 life processes. अब कंक्लूड करो कि लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। आपको लगता है कि कोई भी प्रोसेस इसमें से अगर ना हो तो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है? नो। So these are the processes which are very necessary for living organism to maintain their life on the earth. These are actually life processes, means जिंदा रहने के लिए ये ऑर्गेनिज्म कुछ एक प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूसली उनके अंदर चलते रहते हैं। सो दीज आर 4 लाइफ प्रोसेसेस जो हम इस सारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर फॉर स्पेशली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। आपको अगर कोई भी इसमें डाउट हो, कुछ आपको समझ ना लगा हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं बहुत ही जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली आज ही, न्यूट्रिशन वाला भी जो आपका नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।